प्रणाम। प्रणाम एकता जी। प्रणाम जानवी। Are the lights on here? Just give me one quick minute. I'll just switch the lights properly. माधुरी दीक्षित जैसे दिखने वाली कौन है ये? So gorgeous you looking. I'm looking very pretty. काला टीका लगाया कि नहीं? 10 minutes में साड़ी और मेकअप सब किया है. Last appointment just got finished. Now I'm in office only, so I changed in office only. 6:35 को appointment खत्म हुआ. Then I started getting. Shiv, just pull this behind. और ये आपने क्या बोला? I didn't hear. My headphones were not there. Okay. I said this all sari and makeup everything I have done in 10 minutes. So काला टीका Wow. पता नहीं. I'm sure I'll instruct your son and keep. Say whenever mama has to wear sari, make her put काला टीका. उसको याद रहेगा. हाँ. Even my daughter, she's so much कि अरे you didn't give this to me. You didn't give me lipstick. You didn't give me eyelashes. उसका चलता रहता है अपना. Baby, don't shake it. Looking very pretty. Thank you. मैंने सोचा मैं अभी वीडियो में ना थोड़ा सा I will be getting ready. अभी घर भी पास में I can bring things here and get ready here. साड़ी आपको ज्यादा सूट करता है अब साड़ी. एक्चुअली अभी मैंने बिजनेस भी किसी को मैनेज करने के लिए दिया है ना, सो दैट पर्सन वाज लाइक यू शुड नॉट सिट कैजुअली. आप कैसे भी बैठते हो, तो मैंने कहा इतना कोई सोचता नहीं. देन ही वाज लाइक नहीं, अभी से आगे से आपके वीडियो ऐसे नहीं आएंगे. थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना है. You have to be particular. Yeah. See, when we see other videos now, we figure out कि they are very proper, prim and proper, and very they're professional. very, but they have that much time. I do appointment and then back नहीं, to back. आप थोड़ा टाइम निकाल के करो. This is very important for your image. That is what he also said, that when people imagine you, your image has to be there with the sari only for one particular getup, whatever you want, pick one, but be in that all the time. Then class आप 10 minutes late ले लीजिए, लेकिन आपको ऐसे होना चाहिए. नहीं क्लास लेट नहीं लेना. अभी जस्ट अक्टूबर से ही उसको स्टार्ट किया है. सो ही इज गाइडिंग सर्टन थिंग्स. थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो. बोला मैं आपको थोड़ा सा मतलब ही वाज लाइक कि आपका बहुत अच्छा है टीचिंग कंपेयर टू अदर्स. जस्ट यू आर लैक इन द परफेक्शन, और आप शुरू हो जाते हो, आप सिखाते बहुत हो, बट सबको सब कुछ नहीं समझता है. उसने कुछ क्लासेस भी देखे ना, तो बोला कि आप थोड़ा सेक्शन वाइज थोड़ा रुक के, एंड यू हैव टू बी ऑल द टाइम प्रेजेंटेबल नो मैटर व्हाट. तो मैंने उसको यही बोला दैट आई रियली शफल अ लॉट. ही सेड वो सब आप जानो, वो आपका प्रॉब्लम है, मुझे बिना इसका वीडियो नहीं चाहिए. Very good, very good. You found somebody who was stricter than you also. Yes, so that is good because they know. He said we know how YouTube or algorithm works. If you go casually, it doesn't pick up. It doesn't send it to non-followers. You have to particular. तो चलो, somebody is there to guide me. आप हर एक जन का आंसर करते हो ना यहाँ पर. Some people don't answer all, and believe me, उनके पास like one class I had done, उसमें she was fat one, like आधे घंटे में she finished a master class, and she had almost 200-300 people joining her. Yeah. So वो XLY के साथ होता है. अभी भी उनके जो फ्री सेशंस मेरे every Wednesday and Saturday are there. So 200-300 people always join, and actually people share that my class is different, so I don't want to change that format also. No. And they say कि आपके क्लास में इसलिए हम आते हैं, XLY से हमें बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं, इसका करो उसका करो, बट जब आपका आता है we believe कि every time something new will be there. You will let us talk, क्योंकि वो अनम्यूट ही नहीं करते हैं दूसरे क्लासेस में. That you do in the chat box only. हाँ, पर आपको आगे मिल रहा है क्या कि उन लोग they are coming ahead? Yeah, they are continuing. उनके साथ अच्छा टाइप हो गया है. They are doing good. Yeah, उनके साथ अच्छे बैचेस हो गए. That's true. हाँ, तो उनका भी था कि आप थोड़ा सा रेडी होके वगैरह लो. तो मैंने कहा मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है ना, आई एम इन वास्तु विजिट्स. सो इफ आई एम इन विजिट, आई हैव टू मैनेज द टाइम दैट. नाउ जितने भी मैं देखती हूँ ना वीडियोस, या आपने भी जिनके क्लासेस किए होंगे, मेनी ऑफ देम आई नो पर्सनली. उनका स्क्रिप्ट राइटर कोई और होता है, कैमरा कोई और होता है. हाफ ऑफ देम आर नॉट इवन एस्ट्रोलॉजर, दे गो थ्रू द स्क्रिप्ट. तो उनके लिए पास एक ही काम है, अच्छा मेकअप करना और रेडी होके बैठना. मेरे पास वैसा नहीं. एंड दैट इज व्हाई माय कपल ऑफ फ्रेंड्स,
There are two, I will say. एकता जी, you can see मैंने तो कुछ और ही खुल गया है. हाँ, yeah, your screen is open. Yes. Okay. Disk. Yeah. स्क्रीन विजिबल है बट वो नोट्स नहीं है, मैं क्या कुछ और है ये. नहीं, ये वो कल वाले नोट्स नहीं है, वो मैं आपको सेपरेटली भेज दूंगी. दिस इज डे 1, डे 2 आई हैव मेड. मैम नोट्स नहीं है, ये कुछ व्हाट्सएप है मींस. एक मिनट, ये कुछ और ही है. हाँ. ओके ओके, ये शायद एक्सेल बाय का, आप ही शेयर कर दो जान. इफ शी हैज लेट हर शेयर. What has to be shared? Yesterday's, you said you have yesterday's file. You हाँ. can share that mantras. एक मिनट, Evening हाँ. one. वैदिक मंत्र हम्म. आ गया. Yes, it will come. It's coming. Okay. So, Namaste Amik ji. First we will do is, we will do pranayam. Deep breathing 3 times. And then we will start for our 3 times Om chanting. I will guide you. You can sit in Sukhasana if possible. If you are on the chair or any kind of problem, you can sit that way. हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें बंद, स्पाइन इरेक्ट, और एक लंबे गहरे श्वास के साथ जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप ले सकते हो उतनी लीजिए. इनहेल, 3, 2, 1, and exhale. Feel that all the toxic energy is coming out. One more time. Inhale. Hold on. And exhale. One more time. Hold it for 3, 2, 1, and exhale. आंखें बंद ही रखिए, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, और एक लंबे गहरे श्वास को लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे. इसे हम 3 बार करेंगे. ओम. अब आंखें बंद ही रखते हुए अपने आराध्य दैवत गणपति, अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देवता का नमन करें और उनसे इस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आशीर्वाद लें. Now you can rub both the palms, place on your eyes and your forehead. धीरे 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 हल्के से आंखें खोलेंगे. आज की हमारी जो साधना है, मंत्र जो है मैंने मेरी ग्रैंडमदर से सीखे हैं, तो मैं ये उनके चरणों में समर्पित करती हूँ. इसमें कोई भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ. अब हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे कि हमने पहले और दूसरे दिन क्या क्या प्रैक्टिसेस सीखे थे और आप उसको कर रहे हो या नहीं. आर यू गाइस डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस? ग्रैटिट्यूड हमने सीखा था, फॉरगिवनेस हमने सीखा था, ओम का उच्चारण 11 टाइम हमने सीखा था. सो एनीथिंग आर यू डूइंग? Yes, ma'am. I am following gratitude. फिर सुबह उठकर प्रणाम करना. I have not got the मिट्टी as yet, but फिर शाह लेके फिर भगवान का के सामने बैठना and the jobs and all that I am doing. Very nice. Amik ji, you are doing anything? Yes, ma'am. I'm currently doing everything been told from morning. Once I get up, I just get up and see my hands. Then
I check my nostrils, which is inactive. Then, as per that nostril, I place my feet. Then, before placing the feet on the ground, I just ask forgiveness to Mata Dharti, and then place it, and then take a bath. After before taking a bath, then I fill the bucket. Place depending upon if it's Thursday, then I place turmeric into it, and then take a bath, and then the cleanness, and then take a bath, and then after that. Altar ka puja part, and then I do the everything whatever you've been told with sequence, and the gratitude also, and even before going to bed I practice the gratitude and self forgiveness also, like Right. prayer kind of. And even the bucket filled with what we say, the soil, which I already have it, so I kept it right next to my bed, so I do that also. It is one Okay. extra I added. Very nice that you are almost following everything perfectly. और एक प्रैक्टिस इन्होंने शेयर की वो स्वर शास्त्र की है, वो हम स्वर शास्त्र में सीखेंगे, that he checks his nostril and then he हाँ. put the leg. तो वो एक है कि आपकी जो भी नाड़ी चल रही है वो पैर जो है वो आपको पहले जमीन पे रखना है और उस साइड से आपको मतलब उठना है बेड के, लेफ्ट या राइट वैसे. Ma'am, I have a question. हम्म. Yesterday you spoke something about forgiveness. So I didn't understand. You said not to forgive. We are not allowed to forgive. We don't Okay. have rights to forgive anyone. Okay. Yes. So because there is nothing right or wrong happens in the universe. हमारे साथ कभी भी कोई भी चीज जब तक हम डिजर्व नहीं करते हैं तब तक नहीं होती. कुछ ना कुछ कार्मिक बंध उस व्यक्ति के साथ हमारे होते हैं, तब जाके उनके साथ हमारे कुछ रिश्ते हैं बिगड़ते हैं या कुछ बातें होती है. इसीलिए उन्हें फॉरगिव करने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि शायद हमने कुछ, इट्स लाइक एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन. So when we take a human birth, we all are here to face the reaction what karma we have created in advance in past life. That is what we are not supposed to forgive anyone. But we can ask the forgiveness and it works. मान लीजिए कि आपको कोई हर्ट कर रहा है, किसी को आपको किसी से आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप बोलोगे आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर, आई फॉरगिव हर, बट फॉर व्हाट? You have done something wrong, they are giving reaction, though it was not past life in this life, and you are forgiving them instead of asking forgiveness, because first you begin something wrong. So we have to do acceptance कि मैंने इस जन्म में या इसके पहले किसी भी जन्म में कभी भी किसी को भी knowingly या unknowingly अगर hurt किया है, then I am asking forgiveness from that soul or from that person. जब हम ये करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सामने जो भी व्यक्ति है कुछ दिनों में उनका बिहेवियर हमारे तरफ कम हो जाता है. नाउ हाउ इट वर्क्स, जब आप फॉरगिव करते हो किसी और को, उनका एंगर बढ़ता जाता है और हम अपने आप को समझते हैं कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ काम, आई वांट टू फॉरगिव एंड आई वांट टू लेट गो. So yes, let go is the good practice. Forgiveness is not there because you have to ask forgiveness. जब आप माफी मांगते हो तो क्या होता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने गलती की थी. जैसे आप एक्सेप्ट करते हो उसका प्रायश्चित तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि समहाउ सबकॉन्शियसली जो भी आपको ट्रबल कर रहा है उनका गुस्सा कम हो जाता है, एंड दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई आई एम हर्टिंग हर और व्हाई आई एम हर्टिंग हिम, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. Yes. The other forgiveness that helps us to keep ourselves calm कि मैंने सबको माफ किया. हम है ही नहीं, हम थोड़ी भगवान है किसी को माफ करने या किसी को दंड देने के लिए. हम तो खुद अपने कर्मों के लिए यहाँ आए, वो अपने कर्म है. एंड इट इज ऑलवेज, आई विल गिव यू वन शॉर्ट स्टोरी. इट इज ऑलवेज लाइक कि फॉर व्हाट, कोई भी कर्म आपका है, हमें लगता है कि हमने किसी के लिए भला किया. वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सबके लिए अच्छा ही करते हैं. आई विल गिव यू द एग्जाम्पल कि एक लड़की है जिसका अच्छा खासा जॉब चल रहा है. शी हैज अ गुड पैकेज, अच्छा जॉब है, अच्छी कंपनी है. सेम टाइम हर फ्रेंड इज लुकिंग फॉर जॉब. तो वो अपने फ्रेंड को रेकमेंड करती है कि मैं मेरे ऑफिस में देखती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, सैलरी भी अच्छा है, इंक्रीमेंट अच्छा है, आई विल चेक फॉर इट. उसके दोस्त को काफी समय से जॉब नहीं मिल रहा था. नाउ शी टॉक्स टू HR एंड रेकमेंड हर. HR says yes, there is an opening at this moment, send her to interview and we will see.
नाउ सिंस शी इज रिकमेंडेड बाय समवन, तो वो प्रायोरिटी पे रहता है ना। जब भी आप किसी को रेकमेंड करते हो, इट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी कि वो मेरा रेफरेंस है, आप उनको पहले लीजिए, या आप उनको डिस्काउंट दीजिए, या आप उनको गिफ्ट दीजिए। किसी ना किसी प्रकार से हम रेकमेंड करते हैं। हम डॉक्टर के पास भेजेंगे तो बोलेंगे उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छे से कीजिए। सो व्हेन वी रेकमेंड समवन, व्हेन दैट गर्ल वाज रिकमेंडेड, शी गॉट जॉब बिकॉज उसकी जो फ्रेंड थी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। डिड शी डिड गुड कर्मा और बैड कर्मा बाय रिकमेंडिंग समवन? शी वॉज गुड, तो अच्छा ही है ना। हाँ, शी डिड गुड कर्मा, क्योंकि उसको इस दोस्त को वैसे भी जॉब चाहिए था, बहुत समय से हाँ, जॉब नहीं मिल रहा था। हाँ। ये एकता जी। मैम ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है, वो उनको ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके ओके, या हाँ, शी डिड गुड कर्मा और बैड कर्मा, व्हाट डू यू थिंक एकता जी या अमित जी? Her friend needed a job. She got a job because that girl put a word to the HR. How you see this karma? Good or bad? गुड। This is a good karma. She created with good intentions. Good karma. But the same time, when there were other people for interview, someone was more deserving and more into trouble, more capable to be that position, got rejected. जिसको इनकी दोस्त से ज्यादा जरूरत थी, जिनका क्वालिफिकेशन इनकी दोस्त से ज्यादा अच्छा था, उनका प्रॉब्लम भी बड़ा था, फिर भी वो रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द रेफरेंस। तो अननोइंगली बैड कर्म हो गया ना उसका, और इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, कि किसी को अननोइंगली आपने जॉबलेस कर दिया जो डिजर्विंग है। आपकी फ्रेंड उतनी डिजर्विंग नहीं है, आपकी फ्रेंड नीडी है, नॉट डिजर्विंग। शी नीड अ जॉब, शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, यू रिकमेंडेड सो शी गॉट इट। So you created one good karma, same time one bad karma. So somehow that backfires us in some other time. That is why we should not say I forgive you or I forgive someone. We should ask for forgiveness, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन से सोल के साथ हमारी वजह से कब क्या हुआ है। That's what I was explaining. नमस्ते नफीसा जी। Ma'am, Shubh is trying to get in. Okay. No, Namaste, ma'am. Sorry for coming late. no problem. Extremely sorry. No problem. She's the Shubha Astro, I guess. You're Yes. Shubh Astro, Nafisa ji. Okay. Yes, yes, yes. How was your experience today morning? मैम आज का बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से सब हुआ आज तो। Very nice. बहुत पीसफुल रहा। और आपको एक चीज बतानी है, वो जो नींबू आपने बोला था ना मैम, वो मैंने रखा था ग्लास में। मॉर्निंग में जैसे उसको डाला वो पूरा नीचे बैठ गया, और अभी जब इवनिंग में देखा तो वो ऊपर आ गया है। तो आप वो नींबू ना सैटरडे, हाँ। अभी अगले 3 दिन डेली चेंज कीजिए, एंड देन अच्छा। सैटरडे टू सैटरडे। तो जितने भी क्लाइंट आते हैं उनके साथ कोई भी बैड एनर्जी हाँ आती है ना, इट विल नॉट रिमेन इन हाँ योर हाँ प्रेमिसेस। हाँ, ये घर का हुआ मैम, अभी शॉप में रखा नहीं है मैंने। ओके, हाँ, शॉप तो में घर आज में भी नहीं आप रखता है। रखिए। हाँ पूरा हाँ निगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करता है। यू कैन चेंज एवरी हाँ। 3 days ऑल्सो और एवरी सैटरडे ऑल्सो। ओके, इट मीन्स की नेगेटिविटी है घर में। हाँ, कोई ओके। भी हाँ। नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वाटर इज द फर्स्ट which knows, because ओके। water carries energies and vibrations. तो नेगेटिव हाँ है या हाँ। पॉजिटिव है, वाटर से हमें पता चलता है। एंड लेमन वी ऑल नो कि बहुत सारी मंत्र तंत्र साधनाओं में हम यूज करते हैं। तो किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी है, बिल्कुल इतना बिल्कुल। भी स्ट्रांग है, हमें एटलीस्ट हाँ पता हाँ चलता है कि कुछ है। जी। और ओके जैसे मैम। मैंने आपको कल कहा था कि पहले दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए होंगे, हाँ सेकेंड डे हाँ कम, बट थर्ड डे यू विल कम टू नो कि आपने कंटिन्यू करना है। नाउ यू सेड हाँ। दैट इट्स स्मूथ, दैट मीन्स यस दैट एनर्जी वॉट एवर वॉज देयर हैज सरेंडर्ड। अभी धीरे धीरे वो यस प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हाँ। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर जॉइनिंग यू लेट टुडे। नो 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 प्रॉब्लम। बस क्या होता है, मैं जब पढ़ाती हूँ ना, देन आई डोंट लुक एट द लिस्ट देयर, तो थोड़ा टाइम आपको वेटिंग रूम में रहना पड़ा। Ma'am, you can see my screen. Yes, I can see your No, screen. no, I Now we will go to understand that. Thank you next so page. much. You're welcome. नेक्स्ट पेज, हम थोड़ा सा आगे गए थे, हम शायद गायत्री मंत्र के वहां तक पहुंच गए थे। Okay, 1 second.
मुझे आपका पेज दिख रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। No, This I am is- able to see your screen. ओके, एक मिनट, let me check. Yeah, I'm able to see. एकता जी आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, नोट्स हैं उस पे। हाँ, नोट्स दिख रहे हैं। अच्छा, नोट्स स्क्रीन दिख रहा है मैम, नोट्स दिख रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड ना, हाँ, ओके, सो कहाँ जाऊँ मैं अभी? आप थोड़ा सा नीचे जाइए, हम गायत्री मंत्र जो है वहां तक आ गए थे एग्जाम्पल्स में। हाँ, यस, यहाँ रुकिए, हाँ। फर्स्ट मंत्र पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर। यस, अब वैदिक मंत्र के दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। एक है गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से हमने यहाँ पे लिया है, वो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो नः न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। Om. You have to add Om again at the end for Okay. better results. क्योंकि जनरल मंत्र जो है ना, जनरल गायत्री मंत्र ये है। अब हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है, एंड में ओम लगाना है। अब ये मंत्र आपको करना कब है? सूर्योदय के समय करना है। हमेशा याद रखिए, गायत्री मंत्र जो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाता है। आफ्टर सनसेट वी डू नॉट डू गायत्री मंत्र। जो हवन मैंने आपको बताया था, उस हवन के साथ अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। उसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पहले दिन मैंने हवन का सामग्री बताया था, सबको याद है ना? हाँ, नाउ आपको करना क्या है, शाम के समय या सुबह। हाँ। अगर आप रात में करते हैं तो आपको गायत्री मंत्र नहीं करना है, फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र करना है। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको गायत्री मंत्र करना है। आपको क्या करना है, वो हवन जो है वो पहले उसको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपके घर के मेन डोर से क्लॉकवाइज पूरे घर में उसको धीरे 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 चलते हुए घुमाना है, और फिर से मेन डोर तक आना है। जब आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हो, देन यू गो टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन यू कीप इट देयर इन द साउथ ईस्ट। आप जब वहां साउथ ईस्ट में उसको रखोगे, तब ईस्ट फेस करके 21 टाइम्स गायत्री मंत्र का जाप आपको करना है। और जैसे मैंने कहा था कि उस अग्नि पर अपनी आंखें जो है उससे गेजिंग करना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो फायर एलिमेंट है और शुद्धि है और निगेटिविटी घर में जो है पूरी, वो सारी निकल जाएगी। और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज हमारा जो मैजिक मिक्सचर जिसे हम कहते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने हवन के दिए, दैट क्लियर्स ऑल काइंड ऑफ प्लैनेटरी इफेक्ट्स फ्रॉम दैट हाउस। तो जो भी प्लैनेट आपका दूषित है, आपको पता है जब राहु खराब हो जाता है तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आता है, या बाथरूम के नल जो है वो टपकने लगते हैं, पानी गिरने लगता है, या कुछ ना कुछ एक अजीब सा स्मेल घर में आना लगता है। जब शनि खराब होता है तो झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें, जो ग्रह हमारे घर के जिस कॉर्नर में स्थित है, वहां की एनर्जीज प्यूरिफाई हो जाएगी इस हवन से, और कोई भी निगेटिविटी घर में रुकेगी नहीं। तो मॉर्निंग में आपको ये गायत्री मंत्र करना है। अब थोड़ा सा नीचे लीजिए, देन वी विल से द महामृत्युंजय मंत्र। जब हमें शाम में करना है तो सेम प्रोसेस करना है, वहां पे आपको सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र जो है वो करना है। नाउ प्रैक्टिस हम देखेंगे, रिसाइटेड ड्यूरिंग पूजा, मेडिटेशन, फायर रिचुअल्स। कब कब हम इसको कर सकते हैं? ऑफन पास डाउन ओरली बाय गुरुज और टू डिसाइपल्स। मतलब महामृत्युंजय मंत्र है जो जब तक आपको कोई सजेस्ट नहीं करता है तब तक अपने मन से कहीं से शुरू नहीं करना है। नाउ आई कैन सजेस्ट यू, आई एम सजेस्टिंग यू, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम टीचर, आई एम टीचिंग यू, बट आई हैव सजेस्टेड यू, सो यू कैन कंटिन्यू दैट। बहुत सारे मंत्र होते हैं जो उससे भी अलग होते हैं, थोड़े से ऊपर के लेवल के, जिसमें हमें गुरु से ही दीक्षा लेनी पड़ती। हमने ऐसे कोई भी मंत्र हमारे कोर्स में नहीं लिए हैं जहां पे हमें गुरु की आवश्यकता पड़े। इसका कारण ये है कि जब हम गुरु मंत्र लेते हैं उसके साथ हमें दीक्षा लेनी पड़ती है, और जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। उसके बाद 1 साल तक का नियम होता है, फिर आपकी परीक्षा होती है, फिर नियम होते हैं, फिर परीक्षा। तो वो प्रैक्टिस फॉलो करके जब आप उसमें पास हो जाओगे, देन गुरु गिव्स यू दीक्षा, देन गुरु गिव्स यू मंत्र।
अब ये सब बाईपास करके आजकल जब लोग 4 दिन में दीक्षा देते हैं आपको और गुरु मंत्र देते हैं, दैट इज नॉट वैलिड। इसका कारण है कि जब भी आपको गुरु दीक्षा मिलती है, कम से कम 1 full year यू विल हैव टू बी प्योर वेजिटेरियन। और गुरु दीक्षा आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप प्योर वेजिटेरियन नहीं बनते। तो इसलिए अगर आपको उसके बिना कोई दे रहा है तो कुछ मतलब नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं। और उसके बाकी भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल में हमेशा के लिए चेंज करने पड़ते हैं। अब मैं जो आपको मंत्र सिखा रही हूँ इस 7 days में, वो ऐसे है कि वो आपको रिजल्ट भी देंगे, बट देर इज नो कंपल्शन कि आपने लाइफ टाइम करना है, बीच में छोड़ा तो ये होगा। मैं आपको दे रही हूँ मंत्र एक्टिवेशन टेक्निक दे रही हूँ कि आपने 21 दिन में एक्टिवेट किया, फिर आपने उसको नहीं किया, बट सडनली आपको प्रॉब्लम आ गई, यू कैन चैंट दैट मंत्र एंड विद इन 2-3 days यू विल गेट रिजल्ट, क्योंकि वो एक बैंक बैलेंस की तरह आपके अकाउंट में जमा हो गया है। सो दैट इज वाई आई गेव दिस अ वेरी जनरल बेसिक प्रैक्टिस जो हर कोई करे और हर कोई उसका लाभ उठाए। तो जब हम ये मंत्र करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है कि मेडिटेशन है, फायर रिचुअल है, ये मैंने आपको पहले दिन ही गाइड किया था कि दिए के ऊपर त्राटक करना है या क्या क्या करना है। गुरु दीक्षा जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर दी हूँ सबके लिए। नाउ इज एनीबडी इज ट्राइंग टू ज्वाइन? आई गॉट अ मैसेज। मैम एस्ट्रो शुभ के नाम से कोई है? नहीं, ये तो यही है ना नफीसा जी। नफीसा जी थी। हम्म, हाँ अमिक जी, शी जस्ट रिप्लाइड टू यू, शी जस्ट मैसेज मी ही इज एबल टू ज्वाइन। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि जो मंत्र हम देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, आसन देखा, प्रैक्टिस देखी, हर चीज देखी। हम जब साधना करते हैं ना संकल्प लेके, 21 days हो या 45 days, दैट इज द टाइम वी विल हैव टू बी प्योर वेजिटेरियन। हर मंत्र के कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको प्योर वेजिटेरियन रहना होता है। कुछ मंत्र और भी होते हैं जिसमें आपको जमीन पे सोना पड़ता है, आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। जैसे नवरात्रि के समय हम जब मंत्र करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारे ज्यादा कठिन रूल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। मूव करूं? थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाइए। तो संकल्प हमने देखा है कि संकल्प कैसे लेना है। आप में से किसी को पता है संकल्प कैसे लिया जाता है? ओके, जब भी हम अभी जो हमने किया ना, जो यंत्र पूजा हम मॉर्निंग में कर रहे हैं उसमें हमने संकल्प नहीं लिया है। मैंने आपको यथाशक्ति यथा भक्ति कहा है। जब आप संकल्प लेते हैं मतलब आपने हाथ में जल लेकर उस जल को साक्षी मानकर भगवान को जो है वो अपना वर्ड्स देने हैं कि मैं इतने दिनों में इतना जाप करूंगी। फॉर एग्जाम्पल शायद जानवी जी ने पूछा था कि मैं 1 लाख बार करूँ क्या। सो शी कैन डू दैट कि हाथ में जल लेके उसको कॉपर के बर्तन में आपको 3 बार छोड़ना है और फिर आपको वो संकल्प लेना है कि मैं 45 days में 1.25 लाख जाप करूंगी या 21,000 जाप करूंगी, जो भी आपका कमिटमेंट है। और उस मंत्र के लिए मिनिमम कितना जरूरी है उतना होना चाहिए। कोई भी मंत्र है मिनिमम 21,000 टाइम अगर आप उसके करते हो तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आते हैं। देवी मंत्र है या भैरव मंत्र है या थोड़े से उच्च लेवल के, उनका जाप 1.25 लाख टाइम करना पड़ता है। अगर आप ग्रहों के मंत्र करना चाहते हो तो उनका थोड़ा सा कम है। शनि का ज्यादा है, सूर्य का आप 6,000 टाइम करोगे तो भी चलता है। ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग काउंट से। लेकिन अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है, जैसे श्रिम हमने एक्टिवेट किया था साथ में, तो श्रिम का हमने 21,000 टाइम किया था। बट वो एक ही बीज मंत्र है छोटा सा, इसलिए वो जल्दी हो गया और उसका सबको उस क्लास में बहुत अच्छे से फायदा भी हुआ था। तो श्रिम को जो एक्टिवेट करने का टेक्निक है मैं वो अभी आपको बताने वाली हूँ। श्रिम का मंत्र जाप यहाँ कितने लोग करते हैं? श्रिम बीज मंत्र जो है उसका, या माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप लोग मैम कैसे करते हैं? मैम बोलिए। स्ट्रीम का तो करती हूँ, बट उससे पहले श्रीम ह्रीम क्लीम सॉरी श्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ये वाला मंत्र करती हूँ। मीन्स इसको करते मुझे 4 5 years हो गए हैं, तब से कर ओके, रही हूँ। तो वो काफी एक्टिवेट हो गया। अभी लक्ष्मी माता का या प्रोस्पेरिटी के लिए या श्रिम कोई भी मंत्र आपको करना है, मैं स्पेसिफिकली लक्ष्मी माता के लिए आपको प्रोसेस बता रही हूँ। तो जैसे ओम कमला कमलाय वगैरह जो भी मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी माताय नमः,
लक्ष्मी के जितने भी मंत्र आते हैं उनको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसका प्रोसेस है, आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना है। आपका बैठने का आसन रेड कलर का होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठेंगे, घी का दिया लगाएंगे, और घी का दिया जो है आप दिए का साइज थोड़ा सा बड़ा लीजिए और उसमें आधे से भी कम घी रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा स्पून लेना है, मेल्टेड घी साइड में लेना है। आप एक श्लोक पढ़ोगे, श्री सुक्तम को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं लक्ष्मी माता के लिए। यू रिसाइट द वन श्लोक, वन ड्रॉप घी, अगेन वन श्लोक, वन ड्रॉप घी, ऐसे आपको उसमें ऐड करना है। इससे उसका जो एक्टिवेशन, मतलब आपने हर श्लोक के लिए आहुति दे दी, तो हर श्लोक की आहुति जब आप देते हो ना तो वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और इमीडिएटली 3-4 डेज में आपको रिजल्ट उसका दिखता है। तो श्रिम का ऐसे करना बहुत आसान है। कोई भी श्री सुक्तम के भी 16 श्लोक अगर आप घी के साथ करोगे ना आवर्तन देकर, तो उसका भी रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। दिस इज द एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ श्रिम और एनी लक्ष्मी माता मंत्र पर्टिकुलरली। आई जस्ट पुट मैम वन एवरीबडी। क्वेश्चन इज देयर इफ यू डोंट माइंड। मैम एक श्लोक बोला और ड्रॉप डाला मीन्स एक बार बोल के वो डालना है ऐसा? आई विल सेंड यू द वीडियो फॉर दैट। ओके ओके तो आपने स्पून में घी लेना है एंड देन यू जस्ट टिल्ट इट, एक ड्रॉप डाला वैसे ही पकड़ के एक एक ड्रॉप डालना है घी में। इसीलिए अच्छा आधे से कम घी आपको लेना है क्योंकि हाँ दिया हाँ फ्लो ना हो जाए। हम्म और वो बाती है उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा साइड में, नहीं तो वो बुझ जाएगा। तो उतना आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। हाँ आई पुट एवरीबडी ऑन म्यूट बिकॉज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो है वो है। श्रिम एक्टिवेशन आप सबको पता चला, ये आप कब से शुरू कर सकते हो? आप लक्ष्मी पूजा के दिन से शुरू कर सकते हैं इसको। उस दिन से आप करोगे तो कम से कम 21 डेज तक कीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो हमने अष्टमी से भैरव साधना की है जो लक्ष्मी पूजा तक रहेगी। उसके आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके आगे लेकिन आपको जो है वो लक्ष्मी माता की साधना उस दिन से स्टार्ट करनी है। अब भगवान गणपति के जो मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, ये जो बहुत बेसिक मंत्र है उनका, तो ये मूल मंत्र इसे कहा जाता है। तो ये मंत्र है, ये भी बहुत बार पढ़ा जाता है। इसका भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी डिफरेंट वे से कैसे करना है। जब भी हम गणपति का हमें कोई करने के लिए बताते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं कि उस मंत्र को लेके पढ़ते हैं और हमें बहुत सिंपल लगते हैं। ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, सिंपल सा मंत्र है। या तो उनके जो अथर्व शीर्ष है, गणपति संकट नाशन स्तोत्र है, ये स्तोत्र भी हम पढ़ते हैं। इसको कैसे करना है एक्टिवेट, इसका भी एक तरीका है। जब भी आप गणपति का कोई भी मंत्र करना चाहते हैं तो गणपति जी का वार यानी दिन कौन सा है, you can put in the chat box. If you're everybody, I will put on mute. Which day is we belongs to Lord Ganesh? Wednesday, Tuesday, Wednesday. Yes. गणपति जी का जो दिन है वो शास्त्र के अनुसार वेनेसडे है। जो भी लोग मांगलिक है या जिनको मंगल का प्रॉब्लम है या जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो चुके हैं, दीज पीपल कैन वर्शिप गणपति। पर्टिकुलरली सिद्धि विनायक जो स्वयंभू होता है वो ट्यूसडे के दिन। रेस्ट अदर पीपल कैन वर्शिप ऑन वेनेसडे। और गणपति जी को कौन से प्लैनेट के साथ जोड़ा जाता है? केतु के साथ। तो केतु का भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप वेनेसडे कर सकते हैं। मंगल के किसी भी प्रॉब्लम के लिए गणपति को आपको वर्शिप करना है, दैट इज ट्यूसडे। इसलिए चतुर्थी यानी रिक्ता तिथि जब भी आती है तब आप लोन क्लियरेंस के लिए गणपति की साधना करते हैं। तो अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है? आप गणपति की कोई भी साधना कीजिए, कोई भी मंत्र कीजिए, उसका एक सिंपल तरीका है। जब भी महीने में एक दिन चतुर्थी आती है, संकष्टी चतुर्थी, जो भी आप मंत्र कर रहे हो उसके बुक्स लेने हैं आपको, 21 बुक्स। स्तोत्र है तो स्तोत्र के 21 बुक्स लेने हैं, मंत्र है तो उसके 21 आपको प्रिंट आउट्स लेने हैं या लैमिनेट करके जैसे आपको लगे। गणपति मंदिर आप दर्शन के लिए जाएंगे और वहां जो भी लोग लाइन में है या अंदर है उनमें वो बुक्स आपको बांट देने हैं। वो लोग जितने उस बुक से, आपके दिए गए बुक से जितने चैंटिंग करेंगे ना, उतना लोन आपका जल्दी क्लियर होता है या आपका जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कोई और भी, वो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कम हो जाता है। ये सबसे प्रभावी उपाय है गणपति का कोई भी मंत्र एक्टिवेट करने के लिए।
सो इसका कारण क्या है कि मंदिर में ही जाके देना है, क्योंकि वहां पढ़ने वाले लोग आते हैं जिनको गणपति की आराधना करने में इंटरेस्ट है, और आप भी वहां मंदिर में बैठ के कुछ आवर्तन उसके करें, तो उसका लाभ आपको उस दिन के लिए मिलता है। ठीक है, यू जस्ट स्लाइड अ लिटिल डाउन। अबे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिस इज यूनिवर्सल फुलफिलमेंट मंत्र, जो आप रोज सुबह उठने के बाद 3 बार बोल सकते हैं। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हाथ देखने और कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलना है, तो आप ये भी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं। इस मंत्र को कब कब बोलना है? आप जब सुबह उठते हैं तब आप बोल सकते हैं, आप जब घर से बाहर जा रहे हैं तब बोल सकते हैं, करके अंदर आते समय बोल सकते हैं। बैठ के इसका जाप आप करोगे नहीं करोगे, लेकिन जब जब आप करते हैं एक बार भी मन में अपने बोला ना, या 3 बार भी बोला तो भी चलेगा, तो ऐसे दिन में ऑटोमेटिकली उसका जो है वो चलता जाएगा। दिस इज द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मदर और यूनिवर्स एंड एवरीथिंग वी आर टेकिंग इन दिस लाइफ। ये जो है ये भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको देता है। और इस मंत्र का कोई भी आपको ये नहीं कि आप बैठो और 108 बार करो, अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करना चाहते आप आते जाते इसको 2-2 3-3 बार ऐसे ही मन में बोल सकते हैं। नाउ वी विल सी कि हमने देखा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, जो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, उसी में थोड़ी सी कुछ और चीजें हम आज ऐड करेंगे। एक तो दिया लगाना है, वो हमने देखा। योग, योग मैंने आपको पहले दिन दूसरे दिन नहीं बताया, आज मैं आपको बताऊंगी। हमेशा जब भी कोई स्पिरिचुअल साधना हम करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक साधना, तो ज्योतिष, वास्तु, संगीत शास्त्र, योग शास्त्र और आयुर्वेद, ये 5 शास्त्र जो है, इनका जब हम परफेक्ट बैलेंस करते हैं तब उस चीज का रिजल्ट जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि ये पांचों चीजें जो है ना वो प्लैनेट से जुड़ी हुई है। हमारे जो वृक्ष है वो सारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं, प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। योगा जो है, योगा के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार अलग अलग प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन पांचों का बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आई गिव यू द एग्जांपल। जनरली हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट वी डिस्कस विद द फैमिली मेंबर और समबड़ी, वो हमें कोई उपाय बता देंगे, कुछ दिन हम उसको करते हैं, फिर किसी और को पता चलता है, फिर दोस्त के साथ शेयर करते हैं, वो कोई रेमेडी बता देगी, उसको हम करते रहते हैं, कोई और बताएगा कि एक XYZ एस्ट्रोलॉजर है बहुत अच्छी है, आप उनके पास जाके देखो। हम वहां जाते हैं, वो हमें और 4 उपाय बता देती है, तो ये लिस्ट है ना बढ़ती जाती है। और हम बहुत सारे मंत्र करते हैं, और एक लेवल 6-7 महीने बाद ऐसे आता है कि प्रॉब्लम तो थोड़ी सी कम हो गई, बहुत नहीं, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे तो मंत्र ही कर रही हूँ दिन में। मेरे पास क्या प्रैक्टिकली इतना समय है, और जितना मैं दे रही हूँ उतना मुझे रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इट्स लाइक अ, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई भी एंड तक नहीं पहुंच रही। जैसे हम बोलते हैं कि एक ही रोड पे हम जब 5 कदम चले तो हम डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन 4 दिशाओं में रोज अलग अलग 5-5 चलेंगे तो हम है वही रहेंगे, हम कहीं आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक ही रोड पे रोज 5-5 चलना मतलब एक ही मंत्र आपको पिक करना है, उसी मंत्र को एक्टिवेट करना है, उसी मंत्र से अपनी सारी इच्छाएं जो है वो बुलवानी है, सारी की सारी जो है वो हमने उसमें करनी है। अमित जी सेइंग दैट ही हैज डन दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गणेश बुक, वेरी नाइस। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा अमित जी जब आपने ये किया था? Ma'am, long back, like 10 years back, I used to stay in Borivali, right before the Vajira temple. ओके। So it's I'm sure you must be knowing that it's through a tree the Ganesh Bhagwan has come. Like they say that basically whatever we ask, we generally get. Then basically there was some issue with me which was not getting resolved. So I did it for like 10 days, 11 days continuously the distribution. And on 16th day, automatically things got sorted within got up in the morning and it was done. Basically the SMS came, this is done. And so it was really very quick basically. And it was like I decided a time that morning 6 o'clock I would reach the temple. So there is a lot of queue during that time. After a whole day, there is no queue or there is no people, so I have to wait long. Irrespective of the alarm goes on or off, I used to automatically get up, take bath, and I'll be there at 6 o'clock.
anyways. मतलब there was Okay. some force which was always guiding me कि चल कर लो भाई. So it was really nice experience. So I have a lot of faith in like God and everything. If we are connected, then He takes care of everything. That's what I believe. Yes. And things we are doing, it has to done in a certain way. Now यहाँ पे मुझे आपको बताना है सबको ही, जिस इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं सबको मैं आपको रोज वही चीजें बता रही हूँ जो आप पहले थोड़ी जानते थे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बता रही हूँ। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट भी अक्रॉस आते हैं मेरे, या आपके आसपास भी ऐसे लोग आते हैं कि भगवान को भाव से मतलब है। हम दिल से अगर उनको चाहे तो उनको बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, दिल से मैं उनको नमन करती हूँ और उतना बस है। ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हमारे आसपास होते हैं कि मैं पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं दिल से हाथ जोड़ता हूँ, मन से हाथ जोड़ता हूँ, तो उतने में मुझे रिजल्ट आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना हमारे आसपास। या मंदिर में भी अगर आप जाओ तो ये भी एक चीज आप देखोगे कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, देर इज देर आर वेरी फ्यू टेम्पल्स देर इज अ ड्रेस कोड। महाराष्ट्र में तो बहुत ही कम है, साउथ में आप जाओ वहां पे पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, आपको प्रॉपर साड़ी में प्रॉपर रेडी होके जाना है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। और अगर हम जाते भी हैं या कहीं पे कोई कंपल्शन होता है तो क्या होता है कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो फिर कैसे भी गए तो क्या, हमारा दिल तो साफ है ना। तो मैं जस्ट आपको एक बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हम कोई भी चीज करते हैं ना, उसका जितना परफेक्ट करना चाहेंगे उतना अच्छा रहता है। मेरी एक क्लाइंट है वेदा आंटी, उनका नाम है, साउथ से है। सो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि मैं चेन्नई गई थी मेरे किसी कोर्स के लिए, एंड इट वाज अर्ली मॉर्निंग 3:30, women गेट ड्रेस वेरी नाइसली, साड़ी, बालों में पूरा गजरा वगैरह, एंड मंदिर में जाके दर्शन लेके फिर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल है क्या, तो मतलब मुझे लगा कोई फेस्टिवल होगा उस दिन, बट वो 2-3 दिन वैसे ही चला था। सो आई आस्क्ड कर कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल, शी सेड नहीं, यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है साउथ में। अर्ली मॉर्निंग वी गेट रेडी, वी गो टू टेम्पल every day if possible, otherwise once in a week, but whenever we go we get ready properly and then I was like, इतना टाइम, इट्स वेरी ओल्ड, लाइक 2011-12 में जब मैंने शुरुआत की थी तब की बात है। तो मैंने कहा इतना टाइम मिलता है लोगों को इतना रेडी होने के लिए। तब उन्होंने मुझे कहा था कि जब हम भगवान से मिलने जाते हैं तो जैसे हम उनको देख रहे हैं वो भी तो हमें देख रहे हैं, उन्हें भी तो हमें देख के खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए। दैट थॉट रियली, आई रियली लव दैट थॉट कि हम इस तरीके से कभी सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं भगवान क्या देंगे, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते कि वो भी हमें देखेंगे। तो हमने प्रेजेंटेबल होना है। ये चीजें हम कब करते हैं, जब किसी की शादी में जाना है, जब किसी फंक्शन में, हम कहीं से लोन लेके भी सही, लेकिन परफेक्ट जो वहां पे गेटअप है वैसा ड्रेस ज्वेलरी सब लेके परफेक्ट जाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर जाने में हमें दुपट्टा लेने में प्रॉब्लम होता है सर पे। तो हम जितना कोशिश करें ना उतना फॉर्मेट में, और जो रूल्स बनाए उसके पीछे के कारण समझ के कि सर क्यों ढकना चाहिए, एनर्जी फ्लो है उसके लिए है, ये सारी समझ के वहां जाके जब हम चीजें करते हैं ना तब वो फुलफिल होती है, तब हमारी इच्छाएं फुलफिल होती है। अगर हम भाव से भगवान को कनेक्ट है ना, हमारे जैसे भाव वाले मिलियंस ऑफ देयर, तो हमारा नंबर कब आएगा हमें खुद को नहीं पता है। दूसरी एक बात है, हम कौन से भगवान को वर्शिप कर रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज एवरी गॉड, टू रीच आउट टू दैट गॉड हैज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। हमने इस बार भैरव साधना क्यों ली अष्टमी से, क्योंकि सबसे जल्दी भैरव जी है वो रिजल्ट देते हैं, और लक्ष्मी पूजा तक का जो टाइम है वो बहुत कम है, इट्स लाइक 8 to 10 days टाइम ओनली। तो इतने दिनों में रिजल्ट मिलेगा। अगर हम शिव जी की साधना उनके साथ लेते तो सोचिए हमें कितना समय लगता, क्योंकि शिव जी तक पहुंचने के लिए ही हमें 7 से 8 जन्म लगते हैं। मतलब हमारी साधना पिछले किसी जन्म में शुरू होनी चाहिए, तब जाके हम अपनी इच्छा उन तक पहुंचा सकते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट आता है। श्री कृष्ण के पास हम इमिडिएटली विद इन 21 days पहुंच सकते हैं। हमारा विश फुलफिलमेंट है, तो श्री कृष्ण को वैसे भी मायावी कहा जाता है, मायावी मतलब मैजिकल, तो वो आपकी चुटकियों में समस्या जो है वो सॉल्व कर देंगे। इसलिए हमने क्लिम का मंत्र भी एक बार लिया था, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट उस बैच में सबको आया था। तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि हमारे प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है, हमें कब तक ये काम होना चाहिए, उस प्रकार से कौन सी देवता जल्दी हम तक पहुंच सकती है। हम तो अपना कार्य कर ही रहे, लेकिन भगवान से भी हमारी तरफ जो दृष्टि उनकी पड़ने वाली है, कितनी जल्दी पड़ने वाली है, ये देखना भी जरूरी है।
तो इसीलिए हमें वैसे मंत्र चुनने हैं। अब ऐसे सबसे आसान तरीके से कौन से मंत्र अवेलेबल है, तो शाबर मंत्र। नवनाथ के जितने भी मंत्र है, शाबर मंत्र, वो सारे प्री एक्टिवेट मंत्र है। उसमें आपको उसका उत्कीलन प्रोसेस या कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो मंत्र आप जिस दिन से शुरू करोगे उस दिन से रिजल्ट देने के लिए समर्थ है। उसमें से सबसे ज्यादा जो है एक प्रभावी शाबरी कवच। यहाँ पे शायद एक दो लोगों ने किया था उसका पाठ, शाबरी कवच का। किसी ने किया है या किसी को पता है? अमित जी आपको पता है? मैम वो मिला ही नहीं है, आपने बोला था बट वो उसका कोई बुक या प्रिंट आउट कुछ मिला नहीं। अच्छा, तो ठीक है, मैम मैं आई हैव आपको डन इट। भेज सकती हूँ। यू हैव डन इट, हाउ वाज द आई योर एक्सपीरियंस? no, it was good. I mean, you said to do it for 40 days, तो exactly Yeah. 40 days किया, and जो भी obstacle था हम्म। वो काफी हद तक खत्म हुआ है। And it was a big obstacle. ऐसा नहीं कि एक बंदा कुछ somebody is troubling you. It was a big trouble. So that got या जब भी कोर्ट the केसेस है, पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट से कोई डील है हमारा, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जहाँ पे हम सही है या गलत है, इससे ज्यादा सामने वाला कितना पावरफुल है, इस पे वो प्रॉब्लम डिपेंड करता है। ऐसे समय हम जो है वो शाबरी कवच का पाठ कर सकते हैं। शाबरी कवच का जो पाठ है वो करने में, उसमें एक है कि आपको जिससे भी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको समझाऊंगी। दिस इज नॉट द तांत्रिक क्रिया, पहली बात। क्योंकि आप जब किसी का नाम शाबरी कवच पढ़ते समय लेते हो, मतलब आप प्रे करते हो कि उस व्यक्ति से मुझे कोई बाधा ना हो, आई शुड बी प्रोटेक्टेड। तांत्रिक क्रिया में जब हम किसी का नाम इन्वॉल्व करते हैं, देन दैट पर्सन गेट्स इनटू ट्रबल। तो हमें अपनी खुशी के लिए किसी और को ट्रबल नहीं देना है, ये हमेशा याद रखना है। सामने वाला हमारे साथ कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, हमें अपने एथिकल जो नियम है वो नहीं तोड़ने हैं किसी भी चीज से। क्योंकि जब हम वो आज करेंगे, आज हमें कुछ समय मिलेगा, 10 साल बाद जब प्लानिटरी पोजीशन डाउन हो जाएगी, महादशा किसी पाप ग्रह की आ जाएगी, तो हमें जो प्रॉब्लम आएगी ना, उससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है कि हम अपने कर्म बढ़ाए नहीं प्रेजेंट लाइफ में। तो शाबरी कवच जो है वो सबसे प्रभावी है जब आपको किसी भी ऐसी अ, चीज से या व्यक्ति से या किसी भी प्रकार के अज्ञात डर से अगर कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन जस्ट ऐड ऑन दैट नेम। इफ देयर इज नो पर्सन, यू कैन ऐड ऑन कि मुझे घर में डर लगता है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू गिव इट इमिडिएटली। कोर्ट केस से आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। किसी ने आपके ऊपर कुछ बड़े बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है या कोई कुछ, उस व्यक्ति से आपको बहुत क्विक छुटकारा मिलेगा। एंड देर इज नो रिचुअल, देर इज नो डायग्राम, देर इज नथिंग। यू जस्ट टेक अ शाबरी कवच बुक, सिट, एंड मिनिमम 3 times यू हैव टू रिसाइट इन द इवनिंग टाइम बिटवीन 6 to 8। इतना भी आप करोगे, उसके लिए आप अपने घर से करो, कहीं आप बाहर गए हो, बस आपको डेली करना है। फिर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, वहां से करो। स्थान काल परत वे, उसका कोई आपको इफेक्ट नहीं, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इफेक्ट आपको आएगा। तो शाब्र मंत्र जो है, उसके धन प्राप्ति के भी मंत्र है, हेल्थ के लिए भी है, प्रोटेक्शन के लिए भी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्र माने गए। हमारे इस बैच में जो मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ, जो मैंने आपको प्रॉमिस किए है कि मैं आपको 108 मंत्र दूंगी, वो मैं आपको दूंगी प्लैनेट्स के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से। प्लैनेट्स के हिसाब से मतलब मैं कैसे दूंगी कि किसी का राहु खराब है तो उससे रिलेटेड क्या क्या मंत्र है, किसी का सूर्य खराब है, ऐसे नवग्रहों के मंत्र मैं आपको अलग अलग दूंगी ऑप्शंस में, उसको करने का तरीका। और उसके अलावा मैं आपको दूंगी कि अगर आपका प्रॉब्लम, लेट्स से कि जॉब नहीं लग रही है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो उसके भी आपको 3-4 ऑप्शंस के मंत्र दिए जाएंगे। अब मैं आपको इतने सारे मंत्र क्यों दे रही हूँ, जब मैं खुद आपको बता रही हूँ कि एक ही मंत्र आप रोज करो जो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, then why I'm giving you so many mantras? I'm giving you that so many mantras because you are part of a spiritual healing or spiritual journey. आप किसी को भी वो मंत्र सिखा सकते हैं, आप प्रोफेशनली भी वो मंत्र सिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक मंत्र है जिससे सामने वाले का फायदा होगा। तो आपके पास अपना एक छोटा बुकलेट भी रेडी होगा आपके पास, चाहे आप वो पेड सर्विस लीजिए, फ्री डोनेशन कीजिए, जो करना है कीजिए, वो आपकी मर्जी, बट यू कैन यूज दैट फॉर अदर पीपल्स बेनिफिट। कि सिमिलर प्रॉब्लम किसी का आया तो उन 7-8 मंत्रों से, सूर्य का है उसके साथ, तो उसमें से आपका इंट्यूशन बताएगा कि इस व्यक्ति के लिए आपको कौन सा देना।
That means you will get that additional benefit of healing others also. Now I am always against in the direct healing because we do not have any rights to heal someone. तो ये मंत्रा हीलिंग कैसे काम करता है? वी जस्ट गिव द गाइडेंस कि ये मंत्र आप कीजिए. रिजल्ट तब डिपेंड होगा जब वो व्यक्ति मंत्र करेगी. इफ यू ऑल मस्ट हैव नोटिस इन द ग्रुप देयर इज वन पर्सन कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग, आज मैं उठ नहीं पाया, मैं बहुत थका था, कल से शुरू करूँ क्या, कल से शुरू करूँ क्या. No, there is no excuse. If you want result, you have to be in the discipline. If you keep your discipline, you will get the result. You don't keep discipline, you have excuse. God is not, ऐसे भगवान खाली नहीं बैठे हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पूरी पृथ्वी उनके पास अप्रोच कर रही है. तो हमें अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाना जरूरी. कितना भी प्रभावी मंत्र हो, कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको डिसिप्लिन और रिचुअल से नहीं करते हैं, वो आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा. Because every mantra is a body. You have to put soul, prana pratishtha, by activating it with the particular rituals and flow and the discipline. So आपको वो जो साइकिल है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए. तो विद इन 24 आवर्स वो मंत्र होना चाहिए, नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स होना चाहिए. अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो वो सेम जगह पे सेम टाइम पे बैठ के आपको करना है. थोड़ा बहुत लेट होता है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड सिट एंड स्टार्ट चैंटिंग. अपने मन से आज सुबह किया, कल शाम को किया, ऐसे मत कीजिए. मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनका, एक्चुअली बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था. वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके लाखों रुपए देके आई थी एज अ फीस, पूजा के नाम पे वगैरह, कि ये पूजा करो आप, ये जेम्स पहनो, ये जेम्स पहनो, बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहा. जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उनको बताया था कि माई प्रोसेस इज वेरी सिंपल. फर्स्ट 21 डेज आई कंपल्सरी गिव मंत्रास टू एवरीबडी. पहले दिन कोई आएगा, मैं नहीं बताती हूँ कि आप ये जेमस्टोन पहनो. अगर क्लाइंट पूछेगा मैं बताऊंगी. अपने मन से मैं उनको कोई रुद्राक्ष जेमस्टोन नहीं देती हूँ. फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंड इज take this mantra because your body and soul has to be ready when the positive result comes, and then it will come within 21 days. उनको मैंने मंत्र दिया और वो इतना रोई ना उस दिन कि बहुत ही उनका प्रॉब्लम, मुझे खुद को बहुत बुरा लगा. शी वॉज फ्रॉम गुड वेल्दी फैमिली, बट उनके ऊपर बहुत कुछ ऐसा केसेस हो गए. कुछ उन्होंने क्या किया पता नहीं, बैंक से लोन उठा के 3% से लेके किसी को 10% पे इंटरेस्ट पे देना वगैरह, इस टाइप का कुछ उन्होंने किया. सामने वाले लोगों ने उनके कुछ भी पैसे लौटाए नहीं, ना इंटरेस्ट ना जो लिया था वो. तो उस केस में वो बहुत उलझ गई थी और बहुत उनका करोड़ों का जो था ना घोटाला बन चुका था ऑलरेडी. तो शी वॉज अंडर वेरी मच स्ट्रेस कि ये सब मैंने मेरे बिना, हस्बैंड को बिना बताए किया. अगर ये उन तक पहुंचता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम. तो मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा. उनको मैंने रेमेडी दी थी कि ये रेमेडी जो है वो आपको करनी है 21 डेज डिसिप्लिन से. मैंने उनको अच्छे से समझाया भी था कि आपको कितने बजे उठना है. गिव मी वन क्विक मिनट. मैंने उनको पूछा था कि आपको कितने बजे उठना है, कैसे बैठना है, क्या मंत्र. एंड व्हेन शी शेयर्ड एवरी प्रॉब्लम विथ मी, आई गेव हर वेरी मिनिमल, बट आई सेड आपको ये कम से कम 108 बार तो करना ही है 21 डेज तक. दैट लेडी लेफ्ट. उसके बाद मैं भी उनको भूल गई. 3 महीने बाद वो वापस आई, बोली आपने तो सब बोला था 21 दिन में हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा तो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है, मेरा एकदम सुसाइडल सिचुएशन आ गया. सो आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स. तो मैंने उनको पूछा आपने किया प्रॉपरली 21 डेज? शी सेड यस, मैंने 21 डेज जैसे आपने बताया वैसे सब कुछ किया. बस एक बार मेरे बेटी की एनिवर्सरी थी तो 3 दिन हम रिसोर्ट गए थे घूमने, उस दिन मैंने छोड़ दिया था. तो 3 दिन से क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन नहीं किया तो बाकी तो दिन मैंने किया ना. दैट वाज हर आंसर. सो दैट आंसर गिव्स हाउ मच शी इज सीरियस टू सॉल्व हर ओन प्रॉब्लम. देन मैंने उनको कहा कि नहीं, आपके यहाँ पे एनिवर्सरी है, शादी है, बेबी हो रहा है, भगवान को या आपके कर्मों को उससे कोई लेना देना नहीं है. वो छोटे हैप्पीनेस के लिए आप बड़ा प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार है तो आप झेल सकते. या तो आपने संकल्प नहीं लेना था क्योंकि आपको डेट पता थी, आपको एनिवर्सरी होके जाने देते थे, उसके बाद आप संकल्प लेते थे. आपने उसके बीच में किया, अब उसका रिजल्ट नहीं आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है. एंड देन शी वाज लाइक अब मैं क्या करूं, मैंने तो 18 दिन तो हो गए ना मेरे, अब मैं 5 दिन कर लेती हूँ आगे चल के तो हो जाएगा.
देन आई सेड नहीं, आपको एक साथ 21 डेज फिर से शुरू करना होगा, तब रिजल्ट आएगा। कोई भी जेम्स मिराकुलस रिजल्ट वगैरह वो आपको काम नहीं कर रहा है, ये आपने खुद ने देखा है इसके पहले। देन शी वेंट, शी कुडंट डू दैट मंत्रा फॉर 1 full year। एक साल बाद उनका प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ा, उसके बाद उन्होंने किया, और फिर 1.5 से 2 महीने बाद उनको थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन मिलने लगा। एक एक लोग जो है वो पैसे थोड़े थोड़े छोटे अमाउंट ही सही लेकिन लौटाने लगे। सो कभी कभी ना हम ही अपने कार्यों में बाधा बन जाते हैं या अपनी हीलिंग में, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि जरूरी क्या है। हमारा कुछ पलों का किसी पार्टी में जाना, या हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उससे राहत पाना। तो ये डिसिप्लिन हमारे जीवन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये आता है तो कोई भी मंत्र आपको कितना भी कठिन हो, आपको प्रॉब्लम आपका उससे रिजल्ट दे देता है। नाउ मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, दैट इज द अमेजिंग टेक्निक। उसके पहले हम देखेंगे कि मंत्रों की माला कैसे सिलेक्ट करनी है। तो 108 बीड़ कंपलसरी माला में होने चाहिए। माला क्रिस्टल की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, रोज क्वार्ट्ज की अगर आपका प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स का है तो, फिर बाकी उसके बहुत सारे ऑप्शन है जो आपका प्रॉब्लम है वैसे। बट आपको वन टाइम सारे मंत्रों के लिए पर्पस के लिए करने हैं तो या तो व्हाइट क्रिस्टल की आप यूज करें या रुद्राक्ष की करें। ये दोनों में से एक माला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। श्री विष्णु का अगर आपको जाप करना है तो आप तुलसी की माला कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का करना है, कमलगट्टे की माला कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई व्यक्ति जैसे एकता जी ने कहा वो 3 से 4 अलग अलग मंत्र करती है। नाउ शी कैन नॉट से कि अभी मैम ने बोला है कि लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की लो, विष्णु को ये, तो 4 अलग माला वो अपने लिए नहीं रखी। आपको एक ही माला अपने लिए रखनी। सारे मंत्र जो है वो उसी माला पे होने चाहिए, क्योंकि वो माला आपकी एनर्जीज को कैरी कर रही है। तो इसीलिए आप या तो व्हाइट क्रिस्टल की माला ले या तो कमलगट्टे की, सॉरी, रुद्राक्ष की माला ले। ये दोनों में से एक माला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 180 108 बीट्स उसमें होने चाहिए, 108 बीट्स उसमें होने चाहिए। आपके रिपीटेशन जो है वो साइलेंट हो या जोर से हो, जैसे मैंने पहले दिन सिखाया था। आपका साउंड जो है वो आपको डिसाइड करना है। जो माला आप मंत्र जाप के लिए यूज करते हो उसको आपने पहनना नहीं है। मंत्र होने के बाद उसको उस पाउच में रख के क्लोज किसी जगह पे रख देना है मंदिर के आसपास, उसे कहीं लटकाना नहीं है। एक घर पे मैं गई थी, वहां पे एक लाइन में माला लटकी थी किचन की तरह, एक बेटे की एक बेटी की, सबकी अलग अलग माला, एंड खुले में। माला में एनर्जी होती है तो हम उसको ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू पुट इन द गोमुखी और सम बैग और हैंकरशिप एंड कीप समवेयर। यू टेक इट आउट ओनली फॉर योर चैंटिंग एंड देन अगेन कीप इट बैक। जो माला आप पहनते हो उसके ऊपर मंत्र नहीं करना है। जो इस पे मंत्र कर रहे हैं उसको कभी पहनना नहीं है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है लोग की क्रिस्टल की माला पहनते हैं, अच्छी दिखती है, और उसी पे मंत्र भी करते हैं। तो नहीं, ये दोनों आप पहनने के लिए सेम दूसरी वाली लेके रखिए, चलेगा, बट एक ही जो पर्पस है वो एक ही रहना चाहिए एक माला के ऊपर। नाउ वी विल सी द मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। सो वी विल डू अ शॉर्ट 5 minutes meditation here today. So I want you all to sit in comfortable position and close your eyes. Now since it is लक्ष्मी पूजा, दिवाली, दिवाली तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूजा के ही इससे होती है, नाम से होती है, देन वी विल डू द श्रिम चैंटिंग फॉर 5 minutes ऑल टुगेदर। अगर किसी को पानी पीना है, ब्रेक लेना है, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, तो आपको मेडिटेशन में माइंड डिस्टर्ब नहीं लगेगा। आई विल गिव यू 1 minute ब्रेक। मैम ये जो श्रेम चैंटिंग आप बोल रहे हैं तो वो माला पे करना है कि जस्ट ऐसे ही नो, यू करना जस्ट लिसन, आई विल चैंट। है? ओके ओके। So you take a break, come back and raise your hand that you are ready, and then I'll start.
Ekta ji and Amik ji, are you ready? Yes, okay. Now close your eyes. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, हथेलियां आसमान की तरफ, बट आपको मुद्रा करनी है. दिस विल बी अ मुद्रा. दिस 2 फिंगर्स टच विथ थंब. और ऐसे बैठिए. ये आपको अपने नी के ऊपर रखना है. तो अपने नी के ऊपर रखिए, जैसे पहले आपने रखा था ऐसे, वैसे ऐसा करके रखना है. दैट्स ऑल. मैम ऐसे है मुद्रा, दिस काइंड? These 2 fingers, yeah, and thumb, then this open. Okay. Yeah. सीधे बैठना है, आंखें बंद. Now focus on your breathing pattern. Very slow and gentle. Try to feel your breath. Feel that your body is getting very light. Feel the surroundings in room you are sitting, on which asana you are sitting. And slowly try to take your mind away from those things. If you get any kind of thoughts, let them come and go. Do not try to stop thinking. Just witness and focus on your breath. For next couple of minutes, keep breathing and focus. Try to feel your breathing. जब आप लंबे गहरे श्वास लेते हैं और एक उच्छ्वास, उन दोनों के बीच में जब आपका शरीर और आपका पेट पूरा हवा से खाली होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई गैस नहीं, उस मोमेंट को फील कीजिए. उसके बाद जब आप एक लंबे गहरे श्वास को लेते हैं, तो उस हवा की ठंडक को अपने भीतर फील कीजिए. Try to feel that cold breeze within you. Inhale and exhale. Take your soul little upward slowly, away from this surroundings, this environment, to the somewhere near water, ocean. Now you can see Goddess Lakshmi appears from the waves, very calm, smiling. Look at her lotus feet. From her feet, slowly take your eyes upwards. See her Shrungar. Pink sari, the golden jewelry, and that lotus flower in her hands. A gentle smile on her face. Now go down to her, sit on the ocean banks. Look at her with a gentle smile on your face.
and keep chanting Shrim, 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 Shrim. You have done 21 times, Shrim. Keep your eyes closed and feel the presence of Mata Lakshmi around you, next to you, sitting on the waves. Now feel the Shrim mantra again. Feel the vibrations within you. Shrim, 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 Shrim. Sit calm with closed eyes and feel the presence of Mata Lakshmi. You have completed another 21 rounds of Shrim, and now you are feeling blessed. You're feeling the warmth and coldness of your deep breath while exhaling and inhaling. You see the shower, the rain of golden coins from the ocean towards you. Still, Lakshmi Mata is sitting and smiling at you gently. Now you feel the complete calmness within. Imagine that you get up from the ocean banks, go down to Mata Lakshmi, and coming back to your place with full of prosperity, Swarna, gold, wealth, and abundance.
you're very happy, fulfilled, coming back to the room where you're sitting. But this time, you have something with you, and that's the blessing and abundance. Now, slowly try to feel surroundings. Try to aware about your surroundings, the asana you were sitting, the room you're sitting. Do not push yourself to come back to the normal. If you feel you are ready, if you feel you are feeling the surroundings that you're back from the place you started, you can slowly open your eyes with a gentle smile on your face. Take a couple of breaths. Keep silence for a couple of seconds to be normalized and try to feel the changes. If you feel you are ready, you can move. You can open eyes and you can come back. You can share your experience if you feel any kind of differences. मैम क्या है? Yes. रोना भी आ रहा था. I wanted to scream also. And I think I felt a lot of energy. And whenever I feel energy, I start shaking. So that was what was happening. I hope. That means you got connected. Yeah. But Mata Lakshmi has to bless me. That is what is important. Yes. Definitely. Yes, Nafisa ji. मैम मुझे ना पूरा सा गोल्डन लाइट इतना और इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं जैसे बैठी हूँ वैसे बैठी रहूं. मतलब बहुत अच्छा लग रहा था. ऐसा सुकून ऐसा इतने दिन में कभी ऐसा मिला नहीं जैसे अभी एक थोड़ी देर में मुझे लग रहा था. एंड आई वाज लाइक कि बस आप मुझे आशीर्वाद देके जाइए. एंड इट वाज लाइक पता नहीं क्या था, बहुत बहुत गोल्डन लाइट्स ऐसा, मतलब एक रोशनी ही रोशनी थी बस और कुछ Very नहीं. nice. आई फेल्ट Very, वेरी मैम. very positive sign. बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून लग रहा था. मतलब ऐसे यहाँ से कुछ लहरें आ रही है, उसमें से कुछ गोल्डन गोल्डन निकल रहा है, ऊपर से कुछ गोल्डन गिर रहा है और पूरा लाइट गोल्डन गोल्डन. एवरीथिंग वाज गोल्डन. Amazing. बहुत अच्छा लगा मैम.
Amikji, you were able to do meditation? Yes, ma'am, I was completely able to do the meditation. And from the beginning, it's a really came into meditation from long year. So the same experience, but this was a bit different from what I have seen. And I could see and hear things like the waves, and I could feel the breeze coming on me. Means I could go into the place where these all things are happening. Then emergence of goddess Lakshmi from the water on the this thing, lotus setting, looking at me, smiling. Then I could reach out to her. Then the aura takes time to adjust the what we say the frequency to match the both frequencies. Takes generally time. Slowly I could reach to her and then bow down to her, and then she smiled, and then there was some different sound which I'm not able to explain now. Maybe when I give put a proper word to that sound, when I like bow down to her, and there was some different sound, maybe some mantra which I am not yet accustomed to, or maybe I've never heard basically. And when she looked at me, she could smile. Then there was a light. There was a white and golden mix of light around her aura. That aura was very like something which could not be explained basically, and that aura could be reflected on myself. I could feel that I'm into that part of that aura. The aura was very huge. Like so it was once she starts emerging from the water, the aura also starts emerging. Before her coming out, the aura was like already there. So it was that, and then whatever was happening was like she was means I could basically what we can say I could make out that this is the goddess of abundance and stuff like that. And then when I was coming back, I could see that gold everywhere and stuff. And basically, when I was back to the shore, then I could see her smiling. And then slowly, when I was coming out of the aura, then she was again going back into the water with the flower, and then the aura slowly diminishes and all those things. So that was my experience basically. Very nice. That means you are the witness of the entire process, and you could say that she came to meet you only. The moment you left, she left. Maybe, ma'am. Maybe that is what you should tell me, because I have never done this. So it's my first time with respect to this meditation. Okay. एकता जी, मैम जैसे ऐसे लहरें सी आ रही हैं और लक्ष्मी माता ऊपर स्काई से नीचे आ रही है जैसे, और वेयरिंग पिंक साड़ी, पिंक लोटस, और पूरा जैसे आपने बताया गोल्डन ज्वेलरी एंड दैट वैसे, और मींस लहरों की आवाज है लेकिन कामनेस है उसमें, ठंडक सी है, एक फील हो रही है वो ऐसे. very nice. You can do this every day at least for 2 minutes. That you are receiving the wealth. It is basically for getting abundance and wealth. So it 1 or 2 minutes also, if you do it in the morning time, Brahma Muhurat time, before our sadhana. Now what we will do, once our this Bhairav sadhana complete 11 days, we will start taking 5-10 minutes meditations in the Brahma Muhurat only for each gods. We will do chanting for certain numbers only, and then we will take the meditation alternate day or something. That way I will work it out, because meditation helps us to connect to the mantra so quickly and to feel it. The moment we get connect to the deity or to the god, then that mantra generates miraculous result. So that is again bhav with all rituals. आज आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगी कल की क्लास के लिए. कल का जो हमारा क्लास है वो टुडे इज आवर 3rd डे, इज इट? सो कल हमारा क्लास होगा शाम को 7 बजे. उसके बाद हमारा मॉर्निंग में क्लास होगा 3 डेज, जैसे मैंने आपको कहा था. क्योंकि recordings she did posted in the group or not today? I will check again with her, because she told me she did. She got confused maybe. I will check. Recordings and notes both I have given to her, so I'll check with Revati what she has done. Or you can also mention in the group by tagging her, so she will at least get remembered.
इट हैज टू डन। तो हम क्या करेंगे, कल के लिए मुझे आपसे लिस्ट चाहिए 5 गुड थिंग्स फ्रॉम दिस कंप्लीट लाइफ विच हैपन टू यू, एंड 5 बैड थिंग्स, 5 इंसिडेंट्स जो आप कभी भूल नहीं सकते, और 5 गुड थिंग्स, अच्छे और बुरे दोनों, 5 क्या लिस्ट आप लेके आएंगे। और कल सुबह आप जब मेडिटेशन करोगे, अपने मन से आप 2 मिनट के लिए बैठिए एंड मेक अ नोट, या मुझे बताइए सेशन में कि आपको कौन से गॉड का विजन आता है, आपको कौन से भगवान का विजन आता है। ब्लैंक बैठिए, कोई मंत्र मत कीजिए, कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए ब्लैंक बैठिए, आपको कौन सा विजन आता है वो आप मुझे बताइए कल। Then we can take it further. And tomorrow's class, remind me, we will take tomorrow diabetes, especially for diabetes healing. Because either we have a diabetes or someone around us has diabetes. So we can heal them also along with us. So I also am feeling, though I was not in meditation because I was guiding, but I could also feel that calmness, that means mine also has been happened, some kind of, I can say. Yes, Nafisa ji? मैम मेरा ये था, मैं तो थोड़ा फर्स्ट पार्ट मिस किया, वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। तो वो आसन का आपने उसमें भी कुछ बताया था, रेड आसन बताया था मैंने। रेड, ओके हाँ। ठीक है मैम। मैम आप जो बोल रहे हैं ना कि आप कौन से भगवान को देखते हैं, ये तो मुझे डे 1 से और अभी भी जैसे ना मुझे गणेश जी ही नजर आते हैं। ओके। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ उनके ही रिलेटेड ऐसा मंत्र दे जिसके लिए मैं कुछ और ना करके बस वही एक मंत्र जो मेरे लिए हमेशा, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन इसीलिए आई मैंने डोंट नो पूछा कि जो व्हाई भी इट्स आपकी नॉट कनेक्टिविटी होगी, आई वर्किंग। विल गेट द बेस्ट मंत्र ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड। हाँ क्योंकि हमें विजन उसी गॉड का आता है ना। जैसे हम बोलते जी हैं कि गुरु हमको ढूंढते हैं, हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, वैसे भगवान भी हमें चुनते हैं। तो उनका जी, विजन आपको आएगा, देन आई विल गाइड यू फॉर। यस। तो ओके। मुझे मेरे पास छोटे से गणपति जी रखे हैं, उनके लिए मैं दिया। हाँ, और एक चीज आपको बताना चाहती हूँ मैम, इतने दिन से मैं दिया यहाँ पे लगा रही हूँ। इट यूज टू बी लाइक ऐसा छोटा सा उसका लॉ ये ना होता था, और पता नहीं बस। और अभी कुछ दिनों से मैं लगा रही हूँ ना, तो इतना ब्राइट और इतना बड़ा उसका वो रहता है। हाँ, और बहुत शाइनिंग, और नीचे ऐसा रेडिश रहता है, ऊपर पूरा गोल्डन रहता है, समथिंग डिफरेंट इट इज लुकिंग। वेरी आई डोंट नाइस, नो। दैट मीन्स इट्स एनर्जाइजिंग द प्लेस। हाँ, यस। तो वो बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले वेरी। ऐसा अजीब सा छोटा सा रहता था, एंड मुझे बार बार उसका फ्रेम ऊपर करना पड़ता था ताकि वो लाइट अच्छा दिखे, अच्छा दिखे। नाउ इट ऑटोमेटिकली इट इज लुकिंग लाइक दैट। तो ये अभी हुआ है जब से, मतलब हाँ, इतने दिन से नहीं था मैम। एंड नाउ आई एम, वो 2 बातें आपने बोला था, दैट इज आई हाँ, एम डूइंग, वो करती। वेरी नाइस। तो समथिंग गुड इज हैपनिंग, आई फील वेरी पॉजिटिव। अभी कुछ तो है मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर यहाँ कुछ है नेगेटिविटी मैं फेस कर रही हूँ। मैंने कल ही आपको बोला था कि वह जी। आपके प्रेमाइसिस में कुछ है। हम्म। तो ये मैं नींबू का आपने जैसे बोला है, तो अभी वो जो नींबू रखा है मैंने आज, वो 3 दिन तक वैसे ही रहने दूं? हाँ, सैटरडे के दिन आप चाहे तो उसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने का, ओके, एवरी सैटरडे देन आई विल एवरी चेंज इट। सैटरडे यू कैन डू इट। ओके, सेम इन द ऑफिस एंड सेम एट सेम, होम। यस, बोथ ऑफ द थिंग्स। और वो ऐसे रखिए कि कोई भी आए जाए ना उनको दिखे, ओके फाइन, हाँ हाइड करके नहीं रखना है, हाँ क्योंकि वो हाँ, निगेटिविटी एब्जॉर्ब करे उन पर्सन की। जी जी, हाँ, ओके। ठीक है, ये सामिक जी। मैम मुझे पूछना था कि ये पीडीएफ व्हाट इज विजिबल, मतलब जो दिख रहा है वो पीडीएफ ही मिलेगा या फिर नहीं, अलग आपके नोट्स लिए रहेंगे? अलग है, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सारे मंत्र और सब कुछ दिया है। मैं ओके कोशिश ओके फाइन। करूंगी कि कल सुबह ही भेज दो आपको। आप बस ग्रुप में उसको टैग करके बोलिए कि हमें पीडीएफ नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स नहीं मिला है, देन शी अंडरस्टूड। विल नो मैम, डू इट। आई वाज थिंकिंग कि आई डिडंट रिसीव दिस पार्ट व्हिच इज, सो आई वाज नहीं, कंफ्यूज, सो आई अभी वांट तक टू हमने दिया ही नहीं है, आस्क। अच्छा, कल अंडरस्टूड। देखेंगे। यस, मैम बिकॉज रिकॉर्डिंग आल्सो।
इज माई एक्सपीरियंस कि अगर मैं पहले दिन पीडीएफ देती हूँ ना, लोग उसको पूरा पढ़ के जो मैंने सिखाया है उसके क्वेश्चन पूछते ही नहीं, आगे के ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं. No, that is okay, ma'am. I was confused कि whether it's given and maybe I was left out because I was not inconsistent or probably something which I नहीं didn't नहीं, check my mail or something like that. in the group it will be posted. Okay, I will. ma'am. Recording also. Request for the recordings also, please. Yes. Recording, Thank she you. told me that she uploaded, so I will check one more time. Certainly, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, ये जो माला है, since I have to buy a new one, so can I call for it online? Yes, you can get on. Online, and mostly I'll be doing wealth के जाप, तो I should preferably take कमल गट्टे की माला कि तुलसी की माला. For you, I will say crystal की माला आप लीजिए, because you are अच्छा. particularly looking for harmony and wealth and prosperity. तो white Yes. crystal की माला होती है that I also have. I'll ask her to send a picture to you tomorrow. हमने अभी recently सब energize किया था पंचमी में, नवरात्रि में. Okay, so So she I'll can ask send her it with you. across. Yeah. सो Okay. क्रिस्टल की मैं सबको बोलती हूँ क्योंकि रुद्राक्ष माला में है ना सबसे ज्यादा शक्ति है, लेकिन शुक्र के मंत्र जब हमें करने होते हैं तो शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु आते हैं, लेकिन लग्जरी तो हमें शुक्र ही देते हैं ना. तो व्हाइट क्रिस्टल की माला जो है वो मैं सजेस्ट करती हूँ, जिसमें आप सारे मंत्र कर सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे रुके अभी. Yes. Thank you. Beautiful session, ma'am. थैंक यू. Thank you. पता नहीं मेरा रिएक्शन इतना अलग क्यों था, सब लोग कामनेस एंड आई वाज जंपिंग, मेरे को चाहिए. And the energy was so high that I was shaking and I'm like, stop it. I was consciously stopping. फिर भी But I'm very happy everyone got connected. Everyone felt the presence of Mata. Yes, ma'am. It was very good experience. और मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि 7 चक्र बैलेंसिंग के लिए भी कुछ बताएंगे आप कि कैसा मेडिटेशन करना चाहिए? नहीं, इसमें तो वो नहीं है 7 चक्र बैलेंसिंग. उसका हमारा एक अलग कोर्स है, उसमें वो है 7 चक्र बैलेंसिंग का 7 days. ओके. हाँ. लेकिन मैम मुझे कुछ तो भी वेल्थ के लिए आप बताइएगा, बिकॉज कर्जा बहुत है, बहुत परेशान हूँ मैं फाइनेंस को लेकर के. ये स्वर्णाकर्षण का आप कंटिन्यू 21 दिन कम से कम कीजिए और मुझे बताइए रिजल्ट. जो हम मॉर्निंग में कर रहे हैं ना वो. जी. हाँ. दैट इज द बेस्ट. मतलब वो सबसे फास्टेस्ट वेल्थ कोई ला सकता है तो स्वर्णाकर्षण है. हाँ. मीन्स मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का काम स्टार्ट हो जाए, वो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम. तो उसके लिए मुझे कुछ करना है. उनको बोलूंगी तो वो तो कुछ करने वाले नहीं है, तो आई विल हैव टू डू समथिंग फॉर इट. तो ये आप अभी जो कर ही रही है ना ऑलरेडी 3 days में आपको रिजल्ट भी लगा कि कुछ था, हट गया. अगले 4-5 दिन में आपको और क्लैरिटी आएगी. ओके. आपको क्या मिलने वाला है, कुछ तो क्लियर पिक्चर दिखेगा वेयर योर साथ. ओके. ठीक है. थैंक यू सो मच. चलो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे. शुभम Yes. भवतु. thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू.